making them understand. And because if you go look at the workforce in the smaller towns, they are full of ambition, they are full of aspirations. So that aspirations need to be given. What we are practically seeing in market, retailers, they have to do skilling, reskilling or upskilling. For example, digital is the need of today. लेकिन जो उसके पुराने तौर तरीके उसको उसे बदलना हो, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रही है, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, उस हिसाब से उनको भी अपनी स्ट्रेटेजी और जो जैसे It's an honor to be here, to be part of this retail summit. Yeah, coming back to your question, I think if we see our present government has created facilitators in almost every sector. You see agriculture, rural development, we have gram savers. You see health, we have ASHA workers. So what are these for? These are actually supporters, these are facilitators on the ground to implement the schemes to support the people concerned with these. Similarly, I think in retail, because retail, as you know, we all are aware that it's a huge industry. If we see together, FMCG is the fourth largest contributor to our GDP. And it's growing. The good thing about retailing is that it's growing more than 20% annually. We see the statistics. So why not in retail? Why not have a kind of a dukandar sevak or whatever term we may coin? So why not have kind of that sevak who helps skilling on spot, right? That's a good suggestion. Government can do that. When we talk about see the retail as a whole, retail we include automatically big retail chains like Reliance, Easy others. Let's not name, but we include supermarkets. But if we see our aim of the program, so we are talking about future of small retail, resilience and opportunities for small retailers. So if we come down to small retailers, we have again segments. There are retailers, there are provision stores, which are, you can say they are farm. They have registrations, they run computers, they raise their invoices on computers, they maintain their stocks on computers, right? This is one. Then go to the mohalla or rural pockets. You have retailers who work on traditional framework. There are many retailers, all of us, we belong to a country which is mostly rural still, who are still not registered. Right? When we talk of compliances, so it only applies to people who are already registered on some platform. So we have lot of my colleague from this Rasi will, yeah, you're from Rasi, retail association, skill development. Okay. So he already touched upon this that we have people who do not have formal platforms, who do not have registrations. So to assist such people, you need to have some facilitator who can understand their aspirations and who can help them on spot. For that, I think the best intervention could be from the government side, and I don't think it will be such a huge cost because if we see in rural development and in ASHA schemes, uh, people they are not full-time employees. The savers are not actually full-time employees. They are part-time. They are paid some honorarium to work in that scheme. So similar kind of option can be made available for retail if it has grown. Now, number two, when we come to skilling and upskilling of these people, we have seen that thanks to the government that there are schemes like Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, many other schemes, Deen Dayal Upadhyay Yojana, under which different type of skilling is provided and upskilling also and reskilling is provided to people. As far as retail is concerned, there are targets. Then there are institutions who provide these skillings. So under the rush of targets, under the rush of meeting the targets, so what we do, what PIA generally tend to do, they go and catch up anybody in the market and PIA retailer, for skilling zone, just to grow.
meet the targets and get those payouts out of that. So this arrangement, the local facilitator arrangement will address that problem also. It will mobilize the right candidate, the right person to be skilled, who is working on the corner, who is working in the mohalla, who has a retail shop. So that's the solution in my view. Sure. Yes, Mr. Kumar. Yeah. I want to add one. Now, or within every society, we have 2-3 retailers, or as you said, in airport, or or in a metro station, a retailer. So, in their own retail space, there could be some areas of common skilling. There could be specific skilling needs, and the local retailers or medium-sized retailers, as I said, they know the pulse of their consumers. They operate more on a localized area. So that needs to be understood, that what is the right kind of skilling, required at each retail space. सर अपना नाम मेरा नाम अशरफ वानी है, मैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर से हूँ। तो मैं यहाँ पे इनवाइटी था, एज अ पैनल गेस्ट था यहाँ पे रिटेल संवाद में। तो रिटेलर्स को क्या क्या चैलेंज आते हैं, खासकर हम बात कर रहे हैं स्मॉल रिटेलर्स की, जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। उनको मेजर चैलेंज है कि जो आजकल का ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट आया है, बड़े बड़े रिटेल चेन्स, कि आप छोटी सी छोटी चीज़ भी आपके घर पे पहुंच जाती है ऑनलाइन ऑर्डर करके, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से के साथ वो कैसे लड़ सकें और सर्वाइव कर सकें और ग्रो भी कर सकें, इसी पे आज का ये संवाद था। तो इसमें निकल के आया जो डिस्कशंस में अहम चीज़ जो निकल के आ गई, वो ये है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे एड्रेस करे, जैसे ई कॉमर्स को, मॉडर्न रिटेलर्स, प्रोविजन स्टोर्स को, और जो ट्रेडिशनल छोटे गली कोचों में और गांव में जो रिटेलर है जिनके पास इतने स्किल्स नहीं हैं, उनके लिए एक इकट्ठा एक पॉलिसी फ्रेमवर्क किया जाए जिसके तहत उनको सुविधा मिले, जैसे फाइनेंस की सुविधा मिले, ट्रेनिंग की सुविधा मिले, ताकि वो अपना रोज़गार कंटिन्यू कमा सके और सस्टेन कर सके। क्या कस्टमर और जो विक्रेता होता है उसके बीच क्या होता है, कुछ रिलेशंस भी कहते हैं कि महत्वपूर्ण होते हैं, जिस वजह से व्यक्ति की सेलिंग ज़्यादा होती है सर? हाँ, इसमें देखिए दो तरह के रिटेलर होते हैं। एक रिटेलर होता है जो शहर में होता है, जैसे रेलवे स्टेशन पे हुआ, एयरपोर्ट पे हुआ या मेन मार्केट में हुआ, वो कस्टमर को नहीं जानता है, वो ग्राहक को जानता नहीं है। ग्राहक आया, ले लिया, जो भी खरीदा गया, दूसरा आया, आता जाता है, ठीक है। लेकिन जो गाँव का जो रिटेलर होता है या जो मोहल्ले में, शहर में भी होता है कि मोहल्ले की गली में जो रिटेलर होता है, वो दुकानदार जो होता है उसको और कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप होती है, वो जान पहचान होती है। उनके घर के मेंबर्स की तबीयत जानता है, कौन क्या खाता है, कितने बजे खाता है, कितनी मिकदार में खाता है, सब कुछ उसको पता होता है, फेमिलियर होता है। वो दुकानदार को उतना पता होता है कि जितना घर के सदस्य को नहीं पता होता है। बच्चे को भी भेज दिया, हाँ, बच्चे को भेज दिया, क्रेडिट ट्रस्ट पे चलता है, ठीक है। उस तरह के रिटेलर को क्या है कि एक चैलेंज है कि उसमें रिटेल सेक्टर जो है ये ग्रो होता जाता है, ये 20% से ज़्यादा ग्रो हो रहा है आज की डेट में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे रिटेलर एक लिमिटेड स्पेस में जब दुकान खोलते हैं तो बिज़नेस वायबिलिटी जो है वो कमाई कम होती है सबकी, आप समझे। अगर किसी मार्केट में 100 रुपये की गुंजाइश है, उसमें 100 रुपये में 3 दुकानदार हो गए तो उसको तो 1/3 आ गया, तो सारे तीनों के तीनों लॉस पे चलेंगे। अगर उसके बेहतर था कि एक दुकानदार वहाँ पे चलता, वो प्रॉफिट पे चलता। तो ये है कि उसमें एक सेगमेंट के हिसाब से वायबिलिटी देखनी पड़ेगी कि क्या चलता है, कितना बड़ा मार्केट साइज़ है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, उस हिसाब से उसको। गांव कस्बे की बात करें तो वहाँ पर अभी स्मार्टनेस नहीं है सर, जैसे कि फ़ोन कैसे हमें उसको पे करना है पैसा, आजकल तो ऑनलाइन भी पे हो जाते हैं, ये समस्या भी काफ़ी आती है। हाँ, उसके लिए बात हुई, यहाँ संवाद में बात हुई कि उसको स्किल डेवलपमेंट करानी है, कि जो ये दुकानदार है, जो रिटेलर है, उसको एक स्किल कोर्स, एक छोटा सा शॉर्ट टर्म कोर्स जो उसके दुकान पे भी दिया जा सकता है कि स्मार्टफोन पे आप पेमेंट ले कैसे दे सकते हो और दे भी कैसे सकते हो। ये उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें मेरे ख्याल में ये
वहाँ पे डिस्कशन हुआ कि इसमें बहुत काफ़ी तरक्की हो रही है आजकल, ये फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है इस मसले में, और मुझे लगता है कि ये गैप बहुत जल्दी पूरा हो जाए। सर बात करें हम कई ऐसी शॉप्स होती हैं बहुत छोटी होती हैं जिसमें कस्टमर जो अपनी पसंदीदा चीज़ है वो नहीं ले पाता है, और विक्रेता के समक्ष ये प्रॉब्लम आती है कि शॉप छोटी है। हाँ, वही बात हो रही है ना। देखिए, उसके लिए ये कैपिटल होना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्कीम के तहत इनका जो अभी मुद्रा स्कीम है, PMEGP स्कीम है, उसके तहत कैपिटल अवेलेबल है। ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं रखा है, लेकिन उसमें थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा है। जो कॉम्प्लाइंसेस जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो छोटे दुकानदार, उसकी वजह से वो स्टॉक पूरी तरह से नहीं रख पा रहा है, जितनी वहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उतना नहीं रख पा रहा है, उसकी वजह से उसका बिज़नेस श्रिंक हो रहा है। तो उसमें मेरे ख्याल में स्किल के साथ साथ एक कैपिटल की ज़रूरत है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे तमाम विक्रेताओं को? मुझे लगता है कि रिटेल सेक्टर जो है ये हमारी GDP का, इंडिया की GDP का चौथा बड़ा भाग्य है। ये 10% के आसपास हमारी GDP को दे रहा है, और इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, इसके लिए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, और इसमें लोगों को भी आगे आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मार्केट का हिस्सा है, इसमें रोज़गार बनाने के बहुत अच्छे अवसर हैं, तो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं हमारे यूथ, जिनको इसमें इंटरेस्ट है वो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप एज बिजनेसमैन आ सकते हैं, और इसमें काफ़ी अपनी रोज़गार और अपनी फैमिली के लिए रोज़गार कमा सकते हैं। उमेश कुमार गौतम फ्रॉम प्रेरणा ग्रुप। आई एम डायरेक्टर इन इंग्लिश आई एम डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट एंड लुकिंग आफ्टर नेट्स एंड नैप्स। सर आज यहाँ पर जो डिटेल्स संवाद किया गया है संग्रीला होटल में, सर क्या चर्चाएं हुई और क्या लगता है कि बेसिकली अब कस्टमर और जो कंज्यूमर है उसके बीच में क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? बेसिकली आज जैसे 4 सेशन हुए यहाँ रिटेल संवाद में, और उसके अंदर जैसे जो हमारे जो किराना स्टोर हैं, छोटे छोटे जो रिटेलर हैं गांव के अंदर और कस्बों के अंदर, तहसीलों के अंदर, अब अर्बन सेक्टर के जो रिटेलर हैं वो तो फिर भी जैसे टेक्नोलॉजी के साथ बदल रहे हैं। उनको बहुत सारी जैसे स्कीमें, मान लो मुद्रा स्कीम है गवर्नमेंट की, और उसके थ्रू या मतलब फंडिंग की या लोन की फैसिलिटीज़ अच्छे से मिल जाती है। गांव के अंदर जो है, मान लो कोई महिलाएं अपना किराना स्टोर चलाना चाहें या कोई भी करना चाहें, तो उनको फंडिंग की जैसे प्रॉब्लम है, सुविधाओं की कमी है, डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे गांव जैसे जो डीप रूरल में, जहां पर बिजली 3 दिन आती है हफ्ते में, या मतलब 4-4 घंटे के जैसे कट लगते हैं, तो उसमें जैसे जो सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस हुआ, तो उसमें यही था कि भाई जो मान लो स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज चल रहे हैं, अपस्किलिंग है, रिस्किलिंग है, तो जो ट्रेडिशनल जो किराना स्टोर खोले हुए हैं, छोटे जो स्टोर वाले जो गांव के अंदर हैं, उनको हम कुछ इस टाइप से अपस्किलिंग या रिस्किलिंग करें कि मान लो अगर वो अपनी दुकान छोड़ के तो कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि उससे उनकी इनकम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमने भी जैसे कोशिश की है, और सरकार से भी जैसे हम चाहते हैं कि स्किल वैन ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में जैसे जाएं, और जो जैसे हमारे रिटेलर हैं उनको वहीं पर जैसे RPL कराएं, या कुछ कैप्सूल कोर्स इस टाइप का जैसे स्किल डेवलपमेंट में डाला जाए, ताकि वो दुकानदार भी आज के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर सके और अपनी इनकम को बढ़ाएं, और देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें योगदान दें। तो ये हमारा जैसे डिस्कशन था स्किलिंग को लेके। और इसमें जैसे एक चीज़ और भी बड़ी अच्छी लगी कि जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए जो ईज़ ऑफ बिजनेस है वो सिंगल विंडो कुछ ऐसा होना चाहिए, ताकि वो और सारे झंझटों से बाहर निकल जाए। कई बार ना सर लोगों के व्यापार तो करना चाहते हैं, कुछ लोग किराना की दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कई ऐसे लोग होते हैं जो दिमाग में डाल देते हैं कि नहीं ये तो ख़ानदानी चीज़ें हैं, जो ख़ानदान में करता आया है वही कर सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि आजकल के जो यंग जनरेशन है, इवन देन रूरल के अंदर जो यूथ है या अर्बन के अंदर यूथ हैं,
वो हमारे से तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत इनोवेटिव जैसे सोच रखते हैं, क्योंकि डिजिटल है, स्मार्टफोन पहुंच गए हैं। अभी जैसे और भी डीप रूरल में भी पहुंच जाएंगी चीज़ें, तो उसको देखते हुए आज के टाइम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई भी आदमी या औरत जो है या महिला उसको कर नहीं सकती। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि भाई विमेन एम्पावरमेंट की, दूसरी तरफ बात कर रहे हैं जैसे रूरल एरिया में ज़्यादातर जेंडर बाइस रहता है, महिलाओं को मौका नहीं मिलता, तो कुछ महिलाओं को जैसे एम्पावरमेंट के लिए वहाँ पर थोड़ी अवेयरनेस या कोई ऐसी स्कीम स्पेशली फॉर रूरल गाँव के लिए, वो जैसे छोटे छोटे रिटेल शॉप के लिए, तो इस टाइप से कुछ होना चाहिए और उनको शहर ना आना पड़े, उनके गांव में उनके जैसे जो लोकेशन है वहाँ के मुताबिक उनको जैसे सुविधाएं उनके एट देयर डोर स्टेप देनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई कोई महिला गांव से चलेगी फिर वो शहर जाएगी फिर वो वहाँ पे बैंक में धक्के खाती फिर रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अवेयरनेस कैंप लगा के कि वो लॉजिस्टिक की जैसे वो बात अलग रह जाती है, लेकिन जो अवेयरनेस है कि भाई कहाँ से किस डॉक्यूमेंट के तहत उनको जैसे फ्री में सब्सिडी दे या तो कुछ गवर्नमेंट, या जैसे इंटरेस्ट फ्री थोड़ा लोन दे महिलाओं को गांव के अंदर, ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। अब वहाँ पे जैसे गवर्नमेंट स्कीम तो लॉन्च करती है, लेकिन पूरा एंड तक एंड कस्टमर जो एंड यूज़र है रूरल के अंदर जो महिलाएं हैं उनको तो पता भी नहीं है कि ये मुद्रा भी कोई लोन सुविधा चल रही है या कुछ चल रहा है। तो इस टाइप से थोड़ा डीप पेनिट्रेशन अवेयरनेस हमें करने की ज़रूरत है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे तमाम युवाओं को, विशेषकर आपने जिस तरीके से कहा महिलाओं के सशक्तिकरण, तो महिलाओं के लिए क्या विशेष? इसमें आप देखिए, अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई बच्चे जो हैं ज़्यादातर जितने भी कोर्सेज स्किल डेवलपमेंट में बनाए गए हैं उन सभी के साथ एंटरप्रेन्योरशिप का केवल एक 40 घंटे का प्रोग्राम डाल दिया है। तो हम लोग जैसे सर्विस क्लास तो पैदा हो रही है, नौकरी ढूंढ रहे हैं सभी कोर्स करने के बाद, लेकिन प्रैक्टिकली कितने एंटरप्रेन्योर हम रूरल एरिया में हम डेवलप कर पा रहे हैं, तो उस विषय में हमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। उनको सारी अवेयरनेस, भाई चाहे वुमेन एम्पावरमेंट में आप बात करें, महिलाओं के जैसे हमने बना दिया SHG सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, 8-10 महिलाएं उसमें काम करती हैं, लेकिन दे आर सम गाँव के अंदर या जैसे 10 गाँव में कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो इंडिविजुअल बेस पे इसको अगर हम करेंगे तो और ज़्यादा हम अच्छे से मतलब इसको वो कर पाएंगे। सर, बात कभी कभार होती है कि एक रिलेशंस होता है कस्टमर और उपभोक्ता के बीच में, यस, विक्रेता और उपभोक्ता के बीच में। अपने बच्चे को या अपने घर के परिवार को वहीं भेजते हैं जहां उनका अच्छे से बातचीत होगा या इजीली सामान मिल जाएगा। जो रूरल के अंदर अगर हम इन रिटेलर्स की बात करते हैं तो रूरल के अंदर जो है फेस वैल्यू के उस पे ही दुकानदारी चलती है, दादा परदादा टाइम से जैसे हम उनको जानते हैं। जिस दुकान से लेते गाँव में कोई ऐसा नहीं है कि किसी का छोटा बच्चा भी अगर शॉप पे चला जाए तो उसको भी सामान दे के, दैट इज़ क्रेडिट बेस्ड बिजनेस, कि मतलब उसमें जैसे डेली मान लो ट्रांजैक्शन इतना नहीं हो पाता है गांव के अंदर, लेकिन जैसे फसल पे हिसाब करते हैं तो वो इकट्ठा ही हिसाब कर लेते हैं। तो दैट्स डिपेंड ऑन प्योरली पर्सनल रिलेशनशिप और PR। एक कस्टमर रिलेशन है, आप उसे ये कहो भाई एक ही गाँव के हैं। अभी पैंडेमिक में क्या हुआ, अब हम बात कर रहे हैं इतनी सारी फॉरेन की कंपनियों ने उन्होंने क्या हमारे मतलब जैसे ह्यूमैनिटी के तौर पे क्या हेल्प की, उन्होंने गांव में कुछ दिया या कुछ डोनेट किया। भाई जितने हमारे लोकल जो शॉपकीपर थे उन्होंने तो ये भी किया, अरे यार गांव का आदमी है, चलो भाई खाने को दो, सब उन्होंने हेल्प की है। तो ये तरीके जो है ये हमारी बॉन्डिंग है, जो इमोशनल बॉन्डिंग है रूरल एरिया में। भाई गांव के सभी आदमी एक दूसरे को जानते हैं, तो उस चीज़ पे ज़्यादा रिटेल का काम चलता है और मोस्टली क्रेडिट बेस होता है। तो इसलिए थोड़ा ये सोचना चाहिए कि भाई अगर जो न्यू इंटरनोर, अभी जैसे मान लो कोई दुकान खोलना चाहता है, अब उसको पता है कि क्रेडिट पे जाएगा सामान, वो कैश में नहीं बेच सकता अपने पड़ोसी को। कहे सभी गांव में ऐसे बातें करते हैं, यार हम क्या भाग गए गाँव छोड़ के या मर गए। तो उनको जैसे इस टाइप से लोन का कुछ फैसिलिटीज़ हो कि भाई 1 महीने में 2 महीने में उनको थोड़ा क्रेडिट गवर्नमेंट से या लोन में सब्सिडी मिल जाए इस टाइप से, लेकिन काम करे फिर। ठीक है।